Hello dear students, today we are going to study impulse momentum principle and impact. Okay, so first of all we will see what is meant by impulse. What is impulse? What is momentum? And what is impact? Okay, so what is impulse? Okay, impulse is nothing but when force is acting on the body for very short interval of time, then the product of force and time is called as impulse. Okay, when force acts on the body for very short interval of time, then the product of force and time during which it acts is known as impulse. Okay, so the unit of impulse will be force का unit Newton, time का unit second, so it is Newton second. Okay, now what is momentum? It is the product of mass and velocity, so its unit is mass का unit kg, velocity meter per second, kg meter per second. Okay, and what is impact? Okay, when two bodies collide with each other and exerts a large amount of force for very short interval of time, okay, then that is called as impact. Okay, suppose these are two bodies, body 1 and body 2. So this body is going in this direction and this body is going in this direction, and they collide with each other here for very short interval of time and exerts a large amount of force, then that is called as impact. So we will see what is impulse momentum equation. See what is the impulse momentum equation. Okay, it is also depend upon the Newton's second law of motion, which is rate of change of linear momentum is directly proportional to the applied force. So m is equal to dv by dt. M dv is equal to f dt. Okay, integrate between here, between the limits u and v, and here t1 to t2. Okay, t1 to t2. So it here mv minus mu is equal to f t2 minus t1. So it is change in momentum. It is change in momentum is equal to impulse. Change in momentum is equal to impulse. Or we can say we can write like this: initial momentum, sorry, final momentum minus initial momentum. Final momentum minus initial momentum is equal to impulse. So this is impulse momentum equation. Okay, we'll see the example on this impulse momentum equation. ये भी बहुत इजी पार्ट है, बस आपको फॉर्मूले और प्रिंसिपल ध्यान में आने चाहिए, फिर बहुत इजी है. ओके, इसके ऊपर अभी रिसेंटली तो कोई क्वेश्चन पूछे नहीं है, ठीक है, फिर भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. A baseball is thrown downward from 50-meter tower. Okay, 15-meter tower. Okay, with an initial speed of 5 meter per second. With initial speed of 5 meter per second. Okay, determine the speed at which it hits the ground and time of travel. ठीक है, determine the speed at which it travel means final velocity फाइंड करनी है. ठीक है, एक पार्टिकल यहाँ से ड्रॉप हो रहा है विद दिस वेलोसिटी और इसकी हिटिंग वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है. ठीक है, एंड टाइम ऑफ ट्रैवल. ठीक है, टाइम उसको कितना लगेगा वो हमको फाइंड करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड करेंगे उसकी और फिर टाइम फाइंड करेंगे.
सो जो फाइनल वेलोसिटी है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, बाय वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, KE2 माइनस KE1 इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे वर्क डन कौन सा हो रहा है, यहाँ पे एक ही वर्क डन हो रहा है विच इज़ ग्रेविटेशनल वर्क डन, ठीक है। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू, एक ही वर्क डन हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ग्रेविटेशनल वर्क डन पॉजिटिव रहेगा, प्लस एम जी एच, एम सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मैं ऐसे लिखती हूँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। वी की वैल्यू हमको पता नहीं, वी स्क्वायर माइनस यू इज़ 5 स्क्वायर माइनस सॉरी इज इक्वल टू 2, जी इज़ 9.81 इंटू हाइट इज़ 15. So from this we will get the value of V. It is 2 into 9.81 into 15 माइनस 25. ये 5 का स्क्वायर माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस 25 इन अंडर रूट. आंसर इज 17.86 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से हमने वेलोसिटी फाइंड की है. नाउ बाय इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन क्या है, mv माइनस mu इज इक्वल टू f इंटू टी, ओके, इज इक्वल टू f इंटू टी, फोर्स इंटू टी, ठीक है। अभी m जो है, ठीक है, उसको ऐसे रहने देंगे. m v कितना है फाइनल 70.86, m इंटू 17.86 माइनस m इंटू u इज़ 5 इज इक्वल टू f. अभी यहाँ पे फोर्स कौन सा होगा, ठीक है, एक ही फोर्स रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, वो रहेगा mg इंटू टी. m कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ये g की वैल्यू हम 9.81 पुट करते हैं, ये रहेगा 12.86 इज इक्वल टू 9.81 इंटू टी. सो t इज इक्वल टू 12.86 divided by 9.81. It is 1.31 second. 1.31 second. ठीक है. We take one more example. जो भी बहुत पहले एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन है ये, अभी रिसेंटली तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे नहीं है, लेकिन फिर भी हमको हर एक कंसेप्ट के लिए रेडी रहना है, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर रखने हैं. ओके, ए बॉल हैज़, ओके ये हो गया प्रॉब्लम, ठीक है. ओके, ए बॉल हैज़ मास ऑफ 30 kg and is thrown upward with the speed of 15 meter per second. Determine the time to attain maximum height यूजिंग इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल एंड ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम हाइट. ठीक है, एक बॉल जो है वो ऊपर थ्रो हो रहा है, ठीक है, ये बॉल रहेगा, ठीक है, इसका वेट mg रहेगा विच इज़ थ्रोइंग अपवर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन u. ओके, सो सबसे पहले हम इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन यूज़ करेंगे, ठीक है, m कैंसल विद द स्पीड, इनिशियल स्पीड बताई है उन्होंने 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है. तो फाइनल मतलब ये स्पीड कहाँ पे रहेगी, ठीक है. बॉल हैज़ मास ऑफ 30 kg एंड थ्रोन अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर, मतलब जब वो अपवर्ड जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे टू अटेन मैक्सिमम हाइट पे ये वेलोसिटी 0 हो जाती है. सो इट विल बी -15 इज इक्वल टू g. अभी mg जो है वो नीचे जा रहा है, ठीक है, बॉल ऊपर जा रहा है, तो ये फोर्स नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ये नेगेटिव हो जाएगा. सो इट इज़ -9.81 इंटू टी. सो t इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय
9.81. It is 1.52 सेकंड. इट इज़ 1.52 सेकंड. ठीक है. अभी तो उन्होंने टाइम पूछा, डिटरमाइन द टाइम टू अटेन मैक्सिमम हाइट एंड ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम हाइट. सो वो भी हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से फाइंड करेंगे. mv² माइनस हाफ mu² इज इक्वल टू माइनस mgh. ठीक है, ये ज़ीरो हो जाएगा. ओके, m विल गेट कैंसल. हाफ 15² इज इक्वल टू माइनस g 9.81 इंटू h. h इज इक्वल टू 15² डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 9.81. इट इज़ 11.46 मीटर. ठीक है, इट इज़ 11.46 मीटर. सो दिस इज़ इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन के ऊपर के प्रॉब्लम है. अभी हम देखेंगे इम्पैक्ट के ऊपर के. सबसे पहले इम्पैक्ट की थ्योरी समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी पार्ट है जो आपको समझना चाहिए. इम्पैक्ट की डेफिनेशन तो मैंने बताया. अभी हम टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट देखेंगे. सो टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट्स आर परफेक्टली इलास्टिक इम्पैक्ट, perfectly elastic impact, semi elastic impact, and perfectly plastic impact. परफेक्टली प्लास्टिक इम्पैक्ट. ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन पूछेंगे वो परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक इम्पैक्ट के ऊपर पूछेंगे. सेमी इलास्टिक के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे. ठीक है, तो इसमें आपको पैरामीटर्स जो है ध्यान में रखने हैं वो ये है कि सबसे पहले परफेक्टली इलास्टिक इम्पैक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मोमेंटम इज कॉन्जर्व्ड. मोमेंटम इज कॉन्जर्व्ड. ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो अभी टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, दोनों इम्पैक्ट तो एक बॉडी में नहीं होता है, वहाँ उसके लिए दो बॉडी लगती है तभी इम्पैक्ट होता है. ठीक है, तो दैट बॉडी विल बी 1 and 2. सो हियर टोटल अमाउंट ऑफ मोमेंटम इज m1 u1 प्लस m2 u2. दिस इज बिफोर इम्पैक्ट इज इक्वल टू सेम इम्पैक्ट रहेगा, कॉन्जर्व हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2. Then kinetic energy is conserved. So it is half m1 u1 square plus half m2 u2 square is equal to half m1 v1 square plus half m2 v2 square. Okay, half m1 v1 square plus half m2 v2 square. Then third is coefficient of restitution. Coefficient of restitution. अभी ये क्या है बताती हूँ आपको. Coefficient of restitution is equal to 1. ठीक है, so coefficient of restitution is nothing but the restoration. ठीक है, जब भी कोई पार्टिकल मोशन में रहता है बिफोर इम्पैक्ट और आफ्टर इम्पैक्ट उस उतनी ही मोशन रहती है, मतलब सम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जीज रिस्टोर. ठीक है, इम्पैक्ट के पहले कुछ काइनेटिक एनर्जी रहती है और उसके बाद इम्पैक्ट के बाद वो काइनेटिक एनर्जी स्टोर होती है, तो उसको कहते हैं रिस्टोरेशन. एंड दैट रिस्टोरेशन इज नथिंग बट द रेस्टिट्यूशन. सो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इट इज डिनोटेड बाय E विच इज इक्वल टू 1 इन परफेक्टली इलास्टिक इम्पैक्ट. ओके, सो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1. सो ई क्या है, ई का फॉर्मूला है. ठीक है, ई का फॉर्मूला है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2. ये भी डेरिवेशन से डिराइव किया हुआ फॉर्मूला है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, इसको गलत नहीं होने देना है. ठीक है, ध्यान में v2 अपॉन v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2. तो अब जब ये 2 1 1 2 ये करोगे तो ये 1 2 1 2 ऐसे नहीं होना है, 2 1 1 2. ठीक है, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए. ठीक है, सो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का ये
फॉर्मूला है। अभी सेमी इलास्टिक इम्पैक्ट, सेमी इलास्टिक इम्पैक्ट में क्या होगा देखिए, सेमी इलास्टिक इम्पैक्ट में मोमेंटम इज कॉन्जर्व, ठीक है, ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा, ठीक है। नाउ देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, आफ्टर इम्पैक्ट वो काइनेटिक एनर्जी थोड़ी लॉस होगी, मतलब ये ज़्यादा रहेगी बिफोर इम्पैक्ट की और आफ्टर इम्पैक्ट की थोड़ी उसमें कम हो जाएगी, ठीक है। हाँ, सो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज lie between 0 to 1, it lie between 0 to 1. now perfectly प्लास्टिक इम्पैक्ट, अभी परफेक्टली प्लास्टिक इम्पैक्ट में क्या होता है देखो, मोमेंटम इज कॉन्जर्व, ठीक है, मोमेंटम इज कॉन्जर्व बट आफ्टर इम्पैक्ट दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है, आफ्टर इम्पैक्ट दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है। आफ्टर इम्पैक्ट दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है, ठीक है। नाउ काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो सेम, देयर इज सम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इन परफेक्टली प्लास्टिक इम्पैक्ट इज इक्वल टू 0 रहता है, इट इज़ 0 रहेगा। अभी प्लास्टिक यानी क्या, प्लास्टिसिटी जैसे कि एग्जांपल है मिट्टी का जो गोला रहता है, ठीक है, वो प्लास्टिक रहता है, ठीक है। अगर आप उसको ज़मीन पे डालोगे तो वो रिबाउंड नहीं होगा, उसमें रेस्टिट्यूशन नहीं होगा, उसमें रेस्टोरेशन नहीं होगा, इसलिए वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। तो इम्पैक्ट की डेफिनेशन भी बताए, इम्पैक्ट को कुछ नहीं, कोलिजन, बस कोलिजन याद में रखिए इम्पैक्ट यानी क्या, ठीक है। बहुत सारे एक्सीडेंट्स आपने देखे होंगे रोड पे, तो दैट इज़ नथिंग बट इम्पैक्ट, ओके, दैट इज़ कोलिजन बिटवीन टू व्हीकल्स, ठीक है। सो इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स हैं वो हम देखेंगे कुछ, अभी रिसेंट पूछे हुए न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो अभी रिसेंट जो एग्जाम्पल पूछे हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के ऊपर ही पूछे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के ऊपर पूछे हैं, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए, ए बॉल ऑफ मास 1 kg मूविंग विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ए बॉल ऑफ मास 1 kg मूविंग विथ वेलोसिटी 2 meter per second directly it collides directly on the ball of mass 2 kg at rest, ठीक है, 2 kg at rest. The first ball after collision becomes to rest. Find the velocity of second ball after impact and coefficient of restitution. तो सबसे पहले एक 1 kg का बॉल है, ठीक है, और एक 2 kg का बॉल है, 1 kg एंड 2 kg, ठीक है। जो 1 kg का बॉल है इट इज़ मूविंग विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, ओके, एंड 2 kg का जो बॉल है वो उसकी वो एट रेस्ट है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर कोलिजन फर्स्ट जो है वो एट रेस्ट रहेगा, मतलब u1 u2, तो v1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फाइंड द वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है, ये m1 है, ये m2 है, तो ये बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम फाइंड करेंगे, ठीक है। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, m1 v1 प्लस m2 v2, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1 इंटू 2 प्लस ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा प्लस 2 इंटू v2। सो फ्रॉम दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ v2। v2 इज इक्वल टू, v2 की वैल्यू कितनी आएगी,
इट इज़ 1 मीटर पर सेकंड, इट इज़ 1 मीटर पर सेकंड। और उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सो E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ठीक है। ये और ये दो फॉर्मूले के ऊपर 101% एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। लास्ट के 2-3 साल के पेपर अगर आपने एनालिसिस किए होंगे तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी V2 कितना है, अभी हमने फाइंड किया है 1, V1 कितना है 0, U1 कितना है 2, U2 कितना है 0। सो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0.5। इसको यूनिट नहीं रहेगा, ये कोएफिशिएंट है, ठीक है। यस, अभी हम और एक एग्जांपल लेंगे। Disc A has mass of 2 kg and is sliding forward on the smooth surface with velocity 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक डिस्क है, ठीक है, और ये एक डिस्क है, ठीक है। इट इज़ 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से मूव हो रही है और इसका मास है m1 2 kg। जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वो मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ, ओके। व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन 4 kg डिस्क, व्हेन इट स्ट्राइक ऑन 4 kg डिस्क B at B which is sliding towards A, ठीक है। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है with the velocity 2 meter per second, U2 is equal to 2 meter per second with a direct central impact. If the coefficient of restitution between the disc is E is equal to 0.4 उन्होंने दिया हुआ है, E is equal to 0.4 is given. Compute the velocity of A and B just after collision. Means what? हमको क्या फाइंड करना है, V1 एंड V2 फाइंड करना है। सेम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला आएगा सबसे पहले, ठीक है। m1 U1 प्लस m2 U2 इज इक्वल टू m1 V1 प्लस m2 V2, ओके। m1 कितना है 2, U1 इज़ 5, m2 is 4, u2 is 2 is equal to 2v1 plus 4v2. So 2v1 plus 4v2 is equal to, ये कितना होता है, 5 2 ज़ा 10 प्लस 8 18, ठीक है 18, ओके। ये रह गया इक्वेशन नंबर, सॉरी गलत हुआ है। U2 की डायरेक्शन लेफ्ट साइड है तो ये माइनस हो जाएगा, U2 की डायरेक्शन लेफ्ट साइड है तो ये माइनस हो जाएगा। सो इट विल बी 2, सो इट इज़ V1 प्लस 2v2 is equal to 1. This is equation number 1. Now coefficient of restitution is given 0.4 is equal to V2 minus V1 upon U1 minus U2, ठीक है। E तो E इज़ गिवन 0.4 इज इक्वल टू V2 हमको नहीं पता, V1 भी नहीं पता, ठीक है। U1 कितना है 5 माइनस, यहाँ पे गलत होगा, ठीक है। माइनस साइन ये फॉर्मूले का है और U2 का माइनस साइन अलग रहेगा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ये गलत हो गया तो पूरा प्रॉब्लम ज़ीरो, जैसे कि अभी यहाँ पे भी मैंने नहीं दिया था, ठीक है, ये साइन, तो 0 मार्क्स, ओके। सो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू, ये कितना आएगा 5 प्लस 2 7 7 इंटू 0.4 इट इज़ 2.8। सो माइनस V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 2.8, सेम है, कुछ नहीं, मैंने इधर का इधर किया है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। V1 के नीचे V1 ही आना चाहिए, V2 के नीचे V2 ही आना चाहिए, चाहे उनके साइन कन्वेंशन कुछ भी रहे, ठीक है, क्योंकि सॉल्व करते टाइम गलत नहीं होता है, ठीक है। अभी हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1, साइमल्टेनियस इक्वेशन है। V1 की वैल्यू 1 है, V2 की वैल्यू ये 2 है, ये 1 है,
ये -1 है, ये 1 है, दिस इज 2.8. So V1 is -1.53 meter per second and V2 is +1.26 मीटर पर सेकंड. नेगेटिव साइन है मतलब V1 आफ्टर इम्पैक्ट इधर जाएगा और V2 आफ्टर इम्पैक्ट उधर जाएगा. ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. साइन कन्वेंशन ध्यान में रखिए. वेलोसिटी को, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, उसको डायरेक्शन रहती है. डायरेक्शन यानी कि उसका प्लस माइनस रहता है, तो वो भूलना नहीं है. ठीक है, इसके ऊपर और न्यूमेरिकल्स है. कल मैं एक ऐसे लेक्चर लेने वाली हूँ कि जो इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे 3rd, 4th, 5th, 6th यूनिट के ऊपर. और जिन जिन लोगों को लास्ट 3 इयर्स का सॉल्यूशन अगर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आईडी दे रही हूँ. वो मेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हो. ठीक है, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगी जो भी सॉल्यूशन है लास्ट 3 इयर्स का. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.